صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039 نمبر، مشکات میں 5876 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی، تو انہوں نے پاؤں نیچے رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لڑگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپرد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ورگا کو بندہ ہوتا ہے پہلے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ لات پنوا لئی تواڈے پیچھے دیکھو. انہوں نے پورا اور بڑی خوشخبری کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ہی نہیں ان کے ساتھ کی. کہا یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس طریقے سے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ فرمایا ادھر کر. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو میڈیکلی امپاسبل ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم 5-6 ہفتے درکار ہے، پھر بھی بندہ لنگڑا کے چلتا ہے. اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی معجزہ ہے. لیکن آپ نے کوئی پبلکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا مجھے پیغمبر مانو. کیوں؟ آپ کا دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے. یہ ایک انڈیویجول واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں. تیسرا حصی معجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 4152، مسلم میں 4813، مشکات میں 5882 کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کم پڑ گیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برتن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا. تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے گوشت میں سے، پتھر میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا. وہ تابعی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برتن سے ہی سب کچھ کیا؟ وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے. 1500 بندوں نے ایک پانی کے برتن سے وضو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پی لیا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی 1000 گنا بڑا معجزہ ہے. جو آسا لاٹھی وہ انہوں نے ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے. یہاں پر وہ چشمے تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے، وہ تو معجزہ ہے. لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزہ ہے. اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا. ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کرنے والا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ بات بار بار سمجھ لیں. لہٰذا اس کی بنیاد پہ جو منکرین حدیث ان معجزات کا ڈینائی کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں؟ دعوی نبوت قرآن کی بنیاد پہ ہی ہے، لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا. چوتھا حصی معجزہ صحیح مسلم میں 7518، مشکات میں 5885. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی پیشاب کرنے کے لیے. تو سامنے چٹیل میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے. اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے مطیع ہو جا. اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے. پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس کو بھی کہا وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا. دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے. اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل معجزہ. اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلکلی اس طرح نہیں ہوا, ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا, یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا. الحمدللہ. پانچواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 933 نمبر, صحیح مسلم میں 2078 اور مشکات میں 5902. انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے, ہم بھی پیاس سے مر گئے, قحط ہے, اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے. اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی عربی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو, ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو. اللہ کے حضور دعا کیجئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا. ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی, وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا, لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی, ارد گرد بارش ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے, جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا. چھٹا حصی معجزہ صحیح بخاری میں 119, صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں اور مشکات میں 5896. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر, کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے, وہ آپ کی اتنی دشمن ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. اندازہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے, جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکت. کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. گھر پہنچا تو دروازہ بند, اندر سے نہانے کی آواز آ رہی اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو. دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے, چاہے تو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے. ایسا معاملہ فرمایا اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈیفرینسیشن کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں, اسباب میں تو داخل ہی نہیں ہے چیز. دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ آسان ہو جائے کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نا. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے, تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے. لہٰذا معجزات ہوتے ہی ما فوق الاسباب ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ما فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے, وہ اپنے نبیوں
अलैहिस्सलाम के जरिए मामलात फरमाता है ताकि लोगों का ईमान इस हवाले से बढ़े। 7वां हिस्सी मौजज़ा, सही बुखारी में 3584 और 2095 नंबर और मिशकात में 5903 नंबर। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाकर गिफ्ट किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और आपने वो जुम्मे का खुतबा उस मिंबर पर दिया। जैसे ही आप मिंबर पर चढ़े तो सहाबा कहते हैं कि चीखों की आवाज आई, जैसा कि कोई ऊंटनी का छोटा बच्चा जो है वो चीखे मार के रोता है। अब हम हैरान थे, ये चीखों की आवाज कहां से आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने के पास आए, अपना मुबारक हाथ उसके ऊपर फेरा और सहाबा कहते हैं वो इस तरह खामोश हुआ जैसा कि किसी बच्चे को जब सहलाया जाता है, हिचकियां लेते 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 वो खामोश होता है, इस तरह वो खामोश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का तना अल्लाह के जिक्र से महरूम हो जाने की वजह से रो रहा था कि मैं इसके साथ टेक लगाकर जो है वो खुतबा दिया करता था। तो ज़ाहिर है आपके हाथों की बरकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट, और अब मिंबर पर आप चढ़ गए, हालांकि वो उधर ही मौजूद था, लेकिन वो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से दूरी को उसने इस तरह से इख्तियार किया कि वो रोना शुरू हो गया और सहाबा किराम ने ये फिजिकली महसूस किया उसके रोने की आवाज। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ फेरा, हिचकियां लेता लेता अल्हम्दुलिल्लाह वो खामोश हो गया। इस हवाले से ये भी बात पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये जो नबातात और जानदारों की बोलियां भी सिखा दी थी। और इस हवाले से मैं एक बोनस के तौर पे आपको रवायत बता देता हूं, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2549 नंबर सही सनद के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए तो एक ऊंट दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और उसने आगे अपनी जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत की। आपने फरमाया इसका मालिक किधर है? मालिक को बुलाया गया। आपने फरमाया अल्लाह से डर जा, तू इस बेजुबान के मामले में अल्लाह ताला से डर जा, तुझे पता है इसने मुझे शिकायत की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे खाना बड़ा थोड़ा देता है लेकिन मुझसे काम बहुत ज्यादा लेता है, तो अल्लाह से डर जा और बेजुबान जानवरों के साथ उसने सलूक कर। अब वो जानवरों की बोली इंसान कैसे समझ सकता है? ये मौजज़ा है। जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुरान हकीम में आता है अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर आके शिकायत भी फरमाया करते थे। 8वां हिस्सी मौजज़ा, सही बुखारी में 741, सही मुस्लिम में 958, मिशकात में 1086। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम क्या समझते हो कि मेरा रुख किबला की तरफ होता है? अल्लाह की कसम मैं अपनी पीठ के पीछे भी तुम्हें देख लेता हूं और तुम्हारा खुशू और खुजू मुझ पर पोशीदा नहीं होता। यानी जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अब कौन पीछे ज्यादा दफा दाढ़ी को खुजली कर रहा है या कौन जो है वो नॉन सीरियस खड़ा है आपको नजर आ रहा होता था। फिर मैं अल्लाह की कसम मैं पीठ के पीछे भी देख रहा होता हूं, ये ना समझो मेरा चेहरा उस तरफ होता है। तुम्हारा खुशी और खुजू मुझ पर पोशीदा नहीं होता, अपने रुकू और सजदे पूरी तरह अदा किया करो। ये भी हिस्सी मौजज़ा है। यानी इन दो आंखों से हमें तो 180 डिग्री का विजन भी बड़ी मुश्किल से नजर आता है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 360 डिग्री का विजन नजर आता था। पीछे भी आप देखते थे, यहां आंख मुबारक कोई नहीं थी, इन्हीं दो आंखों के साथ आपको पीछे भी नजर आता था। और इस तरह के कई वाकयात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी कोई आ रहा होता था तो आप कहते थे फलां है, आप देख लेते थे। जैसा कि वो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है जो हुज़ैफा इब्न यमान रात के अंधेरे में हुजूर के पीछे आ रहे थे। आप फरमाया कौन? हुज़ैफा है? या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे, आज मेरे पास वो फरिश्ता आया कि जो आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ और उसने मुझे खबर दी है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार और मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये उस हदीस में भी इसी तरीके से वो जो सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, एक सहाबी अबू बकरा, एक है अबू बकर, एक है अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात में रुकू की हालत में शामिल होकर चलते हुए रुकू की हालत में चलते चलते सफ में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि मैंने तेरा शौक देख लिया है, लेकिन सुकून के साथ आओ, नमाज में जो चीज मिले उसको पाओ, उसके बाद अपनी नमाज जो भी मामला है वो करो। जिससे लोगों ने जो है वो रकत मिलने वाला मामला अखज किया, हालांकि इमाम बुखारी ने रद्द लिखा है, उसमें तो आगे अल्फाज है आंदा ऐसे ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहीं जिक्र भी नहीं उन्होंने एक और रकत मिलाई थी या नहीं मिलाई थी, वो तो एम्बिगुअस चीज है। एम्बिगुअस चीज
मुबहम चीज के ऊपर एक रजन निकाल लेना, रुकू में हरकत नहीं मिलती जब तक कि कोई सूरतुल फातिहा पढ़ के रुकू में शामिल ना हो। उस जमाने में हो भी जाते थे लोग, इतने लंबे रुकू हुआ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फातिहा पढ़ के भी लोग शामिल हो सकते थे। तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से इसलिए देख लिया कि आपको पीछे नजर आता था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा हिस्सी मौजज़ा। 9वां मौजज़ा सही बुखारी में 3579, मिशकात में 5910। देख ले, कोई मौजज़ा भी बुखारी और मुस्लिम से बाहर नहीं है और सब के सब मिशकात में भी मौजूद है। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक सफर के दौरान पानी कम पड़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी का कटोरा पेश किया गया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, जिससे सहाबा इकराम ने वुजू किया। और फिर इब्ने मसूद कहते हैं मैंने खुद देखा कि हम जब आपके साथ खाना खाया करते थे तो हमें खाने की तस्बीह की आवाज भी आया करती थी, खाने की तस्बीह की। और ये कुरान हकीम में आयत भी मौजूद है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करती हो, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। जब पैगंबर मौजूद हो तो अल्लाह ताला बसा औक़ात सुनवा भी देता था। वो कहते हैं हमने खुद सुना खाना खाते। आप जरा इमेजिन करें, आप खाना खा रहे हो और लुकमा आपके मुंह में जा रहा हो, उसमें से सुभान अल्लाह व बिहम्दी की आवाज आ रही हो, तो आपका ईमान किस लेवल पे होगा। यही वजह से सहाबा किराम का ईमान किस एपेक्स और चोटी पे होता था। उन्होंने फिजिकली इस तरह के हिस्सी मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे हुए थे। 10वां हिस्सी मौजज़ा सही बुखारी में 4101, सही मुस्लिम में 5315, मिशकात में भी मौजूद है 5877। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदते हुए एक पत्थर ऐसा है जो टूट नहीं रहा, बड़ी कोशिश की है उस चट्टान के ऊपर, हमने बड़े कुदाल मारे वो टूटता नहीं, तो आपने फरमाया मैं खुद आता हूं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस तशरीफ लाए और सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पे पत्थर भूख की वजह से थे, बंधे हुए, पत्थर बंधे हुए थे ताकि पेट को सहारा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल मारी और वो पूरी चट्टान रेत की तरह ऐसे बैठ गई। ये मौजज़ा ही है। और फिर वहां पर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैंने जब हुजूर की हालत देखी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरादा किया कि आपको मैं खाना खिलाऊं घर जाके। और सहाबा कहते हैं 3 दिन का फाका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी असहाब पे, 3 दिन का फाका। कहते हैं मैं अपनी बीवी के पास आया, मैंने कहा कुछ है अनाज, उन्होंने कहा कि 1 सा जौ है, 2.5 किलो, सिर्फ 2.5 किलो जौ, तो मैं उसको पीस देती हूं, उसका आटा गूंद लेते हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी मौजूद है उसे ज़िबा कर लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई 5-6 बंदे आ जाएं तो उनके लिए खाना हो जाएगा। जाहिर है अब 2.5 किलो अगर जो है वो आटा गूंदा जाएगा उससे कितने लोग खाना खा लेंगे, और एक बकरी का बच्चा। इसी वाक़े को फिर आगे लोगों ने जोड़ के पता नहीं कहा कि जी वो हजरत जाबिर के 2 बेटे थे, एक ने दूसरे को ज़बा कर दिया, आप ने बकरी का बच्चा उसको भी जिंदा कर दिया, उस बच्चे को। बिल्कुल झूठ है भाई, कूड़ मार देने। ऐसे ही बुखारी वाक़या मौजूद है 4101, सही मुस्लिम 5315, मिशकात 5877। जाली बातें खुद से साथ ऐड की हुई है। बहरहाल वो उन्होंने आके आप वसल्लम के कान में कहा या रसूल अल्लाह, वही मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कहना 2-4 बंदे लेके आ जाओ, खाने का इंतजाम कीते हैं। और कान में इसलिए कहा कि ताकि बाकी लोगों के लिए कोई मामला ऐसा ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा से बुलंद कहा भी आज सब की जाबिर के हाथ दावत है। वो उनका तो जनाब आसान खता हो गया। उन्होंने कहा मैं इतने बंदों की मैं कैसे दावत कर सकता हूं, 1000 के करीब बंदा, वो तो 10 बंदों के लिए भी खाना नहीं है। फिर उनको तसल्ली हुई, उन्होंने कहा जब अल्लाह के नबी ने कहा तो फिर आपने तसल्ली दे दी, कहा जाबिर जब तक मैं ना आऊं हंडिया को चूल्हे से नीचे नहीं उतारना और रोटियां नहीं पकाना शुरू करनी जब तक मैं ना आ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक, अपना थूक मुबारक उस हंडिया में डाला और उसके लिए बरकत की दुआ की, ये जिससे वो ये साले सवाब के लिए भी खाना सामने रख के अपने थूक भी पवाया करो ना मौलवियों को, ताकि खुदा के लिए वो एक मोर्जा जाहिर था। इसके साथ ये चीज साबित होती है। मैंने इसलिए पूरा लेक्चर दिया मसला नंबर 74 साले सवाब पे, उसमें बताया कि पब्लिक को पूरी बातें बताया करें, अधूरी बातें ना बताया करें, पूरी बात बताएं ताकि उनको समझ आए कि ये मौजज़ा था, ना कि ये के सामने खाना रख के जी वो खाना रख के सामने इस तरीके से दुआ करना और ये खत्म वाले तरीके डिवाइस करने के लिए उससे प्ली लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम
इस आटे में से गूंथते जाओ, आटे में से रोटियां पकाते जाओ, और सालन जो है वो चूल्हे पे रहे, इस तरीके से सालन निकालते रहो इसमें से। इसका ढक्कन उठाने की जरूरत नहीं है, उधर से जो है वो आटे के ऊपर से कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं, बस निकालते जाओ। और वो लोग टोलियों की शक्ल में आते रहे, खाना खाते रहे, हत्ता कि जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं 1000 लोगों ने वो खाना खाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खा के चले गए, तो कहते हैं मैंने हंडिया उठा के देखी, वो उतनी थी जितनी हमने पकाई थी, और आटा जितना गूंदा था वो उतना ही था। यही दावत तो उन्होंने की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े की बरकत से सब के सब लोग खा गए, और उनके खाने में से भी कोई कमी नहीं हुई। अब इससे ये बात पता चली कि ये सब के सब जो आपका फकर था ना, आपका वो इख्तियारी था। अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करते तो ये सारे मामलात आपके लिए खुल जाते। ये फकर इख्तियारी था। जो बुखारी और मुस्लिम में आता है कि आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान देखकर सैयदुना अबू बकर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। उनका या रसूल सल्लम कैसरो कसरा दुनिया के मजे लूट रहे हैं, और आपके ऊपर भी चादर नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपकी कमर भी देख ली। तो आपने फरमाया उमर, लगता है अभी दुनिया की हकीकत तुझ पे नहीं खुली है। हजरत उमर को कहा, जो दुनिया से जाहिद थे, वो इसीलिए हुआ ना, इस तरह की तरबियत हुई थी। ऐ उमर, क्या इस बात में राजी नहीं हो कि कैसरो कसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत? ये दुनिया के मजे तो खत्म हो जाने वाले, आखिरत की सादत तो हमेशा रहने वाली है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, और ये बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है। इस तरह की 17 हदीसें मैंने बुखारी और मुस्लिम से मसला नंबर 51 में बयान की हैं। रिज़्क़ हराम की मुज़म्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज, मसला नंबर 51 ahlesunnatpak.com पर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों ने वो खाना खाया, और वो खाना उसी तरीके से रहा। 11वां हिस्सी मौजज़ा, सही बुखारी में 6281, सही मुस्लिम में 6055 और 6057, और मिशकात में भी मौजूद है 5788। उम्मे सुलैम कहती हैं, ये हम वैसे सलीम उर्दू में कहते हैं, लफ्ज सुलाइम है अरबी में। उम्मे सुलाइम कहती हैं कि आप सब, ये बुढ़िया औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार, जैसे ये मोहल्ले में भी कोई बुढ़ियां होती हैं, लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, तो आपकी माँ की जगह ही थी, वहां जाते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई बिछा दिया करती थी, आप वहां पे आराम फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोया करते थे, उस वक्त आपको पसीना बड़ा आता था। तो हुआ ये कि ये उम्मे सुलैम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे से पसीना पहुंच के एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में जमा कर रही थी। आपकी आंख खुल गई, आप फरमाया उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पसीना मुबारक बेहतरीन खुशबू है, हम इसे अपने बच्चों के लिए इतर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसमें अल्फाज है कि हम इससे बरकत भी हासिल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सुलैम, तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। यानी आपने इसे एंडोर्स भी कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक ये हिस्सी मौजज़ा है। पसीना तो चाहे सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान अली का हो या मेरा आपका हो, खुशबू नहीं आ सकती। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आया करती थी, और सहाबा किराम इसे एज ए इत्र भी इस्तेमाल फरमाया करते थे, सेंट के तौर पर इस्तेमाल फरमाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा मोर्जा है। बल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात के हवाले से मैंने अलग से भी एक लेक्चर दिया है, मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। और इसी तरीके से मसला नंबर 118 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक के बारे में, खून मुबारक के बारे में, इसी एतबार से पेशाब के बारे में अहले सुन्नत का सही अकीदा क्या है। 12वां हिस्सी मौजज़ा, सही बुखारी में 2930, सही मुस्लिम में 4612, 4615, 4619, मिशकात में भी मौजूद है 5888, 5889, 5890। ये इतने हवाले मैंने इसलिए दिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। ग़ज़वे हुनैन के मौका पर आपको याद होगा, सूरत तौबा के अंदर भी मैंने इस आयत के ऊपर डिटेल से डिस्कशन की थी। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 25 में ये बात डिस्कस हुई कि जब मुसलमानों ने उस वक्त अपनी कसरत के ऊपर तकब्बुर किया कि हम तो बदर में 313 थे, गालिब आ गए, आज तो हम 12,000 का लश्कर है, टिक्का बोटी कर देंगे काफरों की। ये ग़ज़वा हुनैन मुशरिकीन अरब से आखिरी जंग थी, ये फतह मक्का के बाद हुई, कबीला हवाज़न के खिलाफ, और बड़े तीर अंदाज लोग थे, और मुसलमानों की जुबान से निकल गया ये तो शाही कोई नहीं ने, आज तो ऐसी 12,000। और अल्लाह ताला को इस किस्म का जुमला पसंद ना आया। सूरह तौबा की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, फिर जनाब पीछे मुड़ के भी ना सब वेख दे, इस तरीके से तुम्हारे उत्ते दहशत तारी हुई काफरा दी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे, और अल्लाह के रसूल तुम्हें पुकार रहे थे और तुम फिर भी भाग रहे थे। ये हालत हो गई। अल्लाह ताला को तकब्बुर वाला जुमला पसंद नहीं है कभी भी, नेवर।
ग़ज़वे हुनैन के मौका पर यही हुआ कि सब भागदड़ मच गई। 12,000 में से सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सब छोड़ गए। ये फतह मक्का के बाद का वाक़या। ऐसी भागदड़ मची उनके तीरों के डर की वजह से। अब ये एक मौका होता है जिसमें पता चलता है कि लीडर फ्रंट से लीड करे आगे। अगर वो अपने पैशन में सच्चा है ना तो उसकी लीडरशिप फिर नजर आएगी। और सहाबा कहते हैं हमने देखा, हम तो भाग रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बिल्कुल काफिरों के लश्कर के अंदर जाके अकेले अल्लाहु अकबर रिज्स पढ़ते हुए अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मुझे कोई शक ही नहीं है, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यानी पूरी दुनिया मुझे जानती है। यानी ये एक मौका था जिसमें लोग चेक कर सकते थे। जो ग़ज़वा बदर में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा पीछे लगा था, प्रैक्टिकली लड़ाई के लिए आगे नहीं आए, तो उसमें तो कोई कह सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रहे, आपको क्या पता आगे लड़ाई में क्या हुआ। और यहां जब सब भाग गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रंट से लीड किया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना अब्दुल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, कोई शक ही नहीं है, मुझे अपनी नबूवत में कोई शक ही नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जमीन के ऊपर हाथ मारा और एक कंकरियों की मुट्ठी पकड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं आपने उस पर फेंकते हुए फरमाया कि इन सब के चेहरे झुलस जाएं। और सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम, सबकी आंखों में जाके वो लगी और सब के सब अंधे हो गए सामने आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे मोहम्मद की कसम, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है, काफिर शिकस्त खुर्दा होकर भाग गए। और वाकई वो फिर भाग गए, उनका जोर टूट गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इशारतन अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में भी किया है। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 17 में, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने वो मुट्ठी फेंकी थी ना काफिरों की तरफ, वो आपने नहीं फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी, जबकि आपने फेंकी थी। अल्लाह, यानी वो अल्लाह का मौजज़ा जाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों ने वो जो कंकरियों की मुट्ठी फेंकी काफिरों पर, अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमने फेंकी थी, जो आपने फेंकी ये हमारे डिवाइन डिसीजन इसके पीछे था। और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक, इससे ये बात पता चली कि ये दुनिया बकदरे एफर्ट है। सही मुस्लिम में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु सकीफ को दावत देने के लिए गए ताइफ के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुहान कर दिया गया। पहाड़ों का फरिश्ता आया कि आप इजाजत दें तो इनको सुरमे की तरह मसल दें। आपने फरमाया इनकी आने वाली नस्लें जो है हो सकता है ईमान कबूल कर लें, और वाकई कबूल किया। मुख्तार सक़फ़ी जिन्होंने कातलीन हुसैन से बदला लिया, वो उसी बनी सकीफ से थे। मोहम्मद बिन कासिम उसी बनी सकीफ से थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बकदरे एफर्ट रखी। यहां आपको अर्न करना पड़ेगा, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, तब जाके कोई आउटपुट नजर आएगी। इस